First of all, a very good evening to all of you. नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग की यह उड़ीसा यात्रा जो आप सब जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव और जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं उनके समीक्षा के क्रम में की गई है। ये भी आपको अवगत है कि 2024 में 4 राज्यों के और चुनाव होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल और सिक्किम भी शामिल हैं। तो ये जो प्रिपरेशन की रिव्यू है ये स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 दोनों के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to, on the behalf of Election Commission and through your medium, would like to say that we are fully prepared to conduct 2024 parliamentary elections and also the state assembly elections. Every preparation is almost complete. And in this sense, before I start my presentation, I would like to request through you from the Commission side that all the voters of Odisha should come and participate in this festival of democracy. So, सभी से बहुत ही विनम्र अनुरोध है सभी उड़ीसा के वोटर्स से कि आपके लिए बहुत तैयारियां की हैं हम लोगों ने और करने वाले हैं, तो जरूर जरूर वोट डालने के लिए आए। युवा वोटर्स हों या महिला वोटर्स हैं या हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में इनएक्सेसिबल एरियाज की वोटर्स हैं। तो ये चुनाव का पर्व है, देश का गर्व है, इसमें जरूर जरूर पार्टिसिपेट करें। सो फ्रेंड्स, the commission began its visit yesterday and first of all met with the political parties. That is a tradition, we first hear all the political parties so that whatever they have to tell us, whatever they have to have issues, they tell us. Then we met all the district collectors and the SPs and the IGs, commissioners. Thereafter we met today morning all the enforcement agencies of the central department and the state departments. And thereafter the Chief Secretary, DG and other senior officers of the states. So I brief you about what happened in those meetings, what were the issues and what is our reaction. So I'll give you full brief on this so that you are fully aware of what is happening. In the Commission we follow a very strict policy of 3 main ideologies. One, inform, inform, inform. So we disclose whatever we do to everybody, either through our websites or through press conferences. Secondly, involve. We involve all political parties, media and other stakeholders at every stage of whatever we do. So that आपको बता भी दें हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रश्न भी ले और उसके बाद में उसका उत्तर भी दें. So the participation and then disclosure. This is what we always manage. So in that kram, I will first tell you what the political parties told us. What is their expectation from us? हमने जो मीटिंग्स की उसमें नेशनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी और बाकी नेशनल रीजनल पार्टी के रूप में आप, बीएसपी, बीजेपी, बीजेडी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने आए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं उनका क्या कहना था, बिकॉज उनको जो कहना है वो हम सुने और उसका जवाब दें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So the main issues inter alia were that first demand was that we ensure the neutrality of the government machinery. Many parties stated that the administration is perceived to be not neutral, so they favor a party in power. Therefore, the level playing field should be established and administration should become totally aligned to this principle. There was also an apprehension that during elections, the facilities and entitlements which are given to the political parties, जैसे ग्राउंड उनको देना है, व्हीकल्स की परमिशन देना है, लाउड स्पीकर की परमिशन देना है, तो वो उनको नहीं मिलती है, दूसरों को जल्दी मिल जाती है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, that whatever entitlement the political parties ask for, they should be given to everybody equally. Then administration last election में was not all that alive to checking the violence. There was violence which happened in last elections in certain areas. तो उनको पूरी तरीके से एनर्जाइज किया जाए कि यहाँ वायलेंस ना हो। ऐसा भी लोगों का कहना था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का, नॉट ऑल, कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और को या एम्बुलेंसेस को यूज किया जाता है कुछ इरेगुलर सामान ले जाने में, जिसमें कैश भी शामिल है। ऐसा उनका परसेप्शन था, उनका कहना था।
सिमिलरली ये भी कहना था कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पीएसयूज हैं, उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए किया जा रहा है या किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। दूसरी उनकी रिक्वेस्ट थी कि ईवीएम्स को जो है वो सबके सामने में एक दो जगह में सील नहीं किया गया था लास्ट टाइम, उसको इंश्योर किया जाए। जितने वेयर हाउसेज हैं उनमें सब में सिक्योरिटी पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए, जिसमें खासतौर से सीएपीएफ की यानी सेंट्रल फोर्सेस की सिक्योरिटी भी हो स्टेट के साथ साथ। देन उनका यह भी कहना था जब इलेक्शन खत्म हो तो कितने वोट पड़े उसका एग्जैक्ट खाका, उसका एग्जैक्ट हिसाब किताब फॉर्म 17C के अंतर्गत कैंडिडेट्स को के एजेंट्स को दिया जाना चाहिए, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी उसमें चेंज का प्रॉब्लम ना हो। दो और स्पेसिफिक थी उनकी डिमांड्स कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर्स चलाते हैं या पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, तो पेड न्यूज को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि न्यूज के फॉर्म में पार्टी प्रमोशन या अपना प्रमोशन किया जाए, उसको आप पेड न्यूज के रूप में माने। ये भी कहना था उनका कि जो कुछ एक पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं उसमें सिंबल यूज हो रहा है पार्टी का, दैट इज ऑल्सो against the norm on the symbol orders and also misuse of public funds. These were the demands. So as you know, the feedback from the political parties are very, very important. They are important stakeholders in the entire election process. The first being the voter, most important being the voter. They are the second interface between the voter and the commission. So we have, I will tell you each point during the presentation. लेकिन ये निश्चित है कि जो वो पॉइंट उठाए उनका समाधान होना चाहिए, नॉट ओनली एक्चुअली बट परसेप्शनली ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनका जवाब दूंगा सबका एक एक करके व्हेन द सब्जेक्ट कम्स और इन द एंड। सो एज रिगार्ड्स द असेंबली इलेक्शंस एंड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कार्यकाल जो है उड़ीसा विधानसभा का 24 जून 2024 को खत्म हो रहा है और पार्लियामेंट्री का जो है 16 जून को खत्म हो रहा है, यानी 16 जून से पहले ये चुनाव संपन्न होने जरूरी है। उड़ीसा में 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जैसे आपको मालूम है, जिसमें से एसटी 33 है और ये एसटी का जो नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 21 में से 13 जनरल हैं, एससी की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और एसटी की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एंटायर कंट्री। देन second highest actually if you look at it in the entire country after Jharkhand, which has 6 parliamentary constituencies reserved for STs. If I tell you about what is your electoral roll like, मतलब कौन लोग वोट करेंगे, तो पूरी स्टेट में 3.32 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें से मेल 1.68 हैं और फीमेल वोटर्स 1.64 हैं। इस बार प्रयास रहा है कमीशन का बहुत अधिक कि इसको काफी इंक्लूसिव बना जाए, प्योर बनाया जाए। तो हमारे पास 3380 थर्ड जेंडर भी हैं। वी हैव मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एनरोल देम बिकॉज दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड वेरी सीनियर सिटीजन्स आर 6.8 lakhs और जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको भी खासतौर से इलेक्टरल रोल्स में ईयर मार्किंग की गई सो दैट वी कैन गिव देम एक्स्ट्रा फैसिलिटी, द फैसिलिटी बीइंग द वोटिंग फ्रॉम द हाउस और स्पेशल फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशन। देन आपको जान के खुशी होगी कि इसमें से ऐसे भी हमारे पास 9060 मतदाता हैं जो 100 साल से अधिक के हैं।